I'm not a doctor, so I'm in an awkward place over here. So my my motivation here is to enable you guys to explore more. ठीक है, तो आज का it is more about what's coming ahead and how can we sort of make sure that we are ready for it. जिस तरह इंट्रोडक्शन में कहा गया था कि I was a computational structure biologist. I don't know if you are following up or not. So DeepMind is a company by Google that is doing a lot of AI stuff in a lot of different fields. तो मैं जो है वो protein folding को my PhD is on protein folding कि how do membrane proteins fold और उनका 3D structure किस तरह का होता है. Usually we used to take a whole PhD to come up with one structure. आजकल आप वो सीक्वेंस जो है AlphaFold नाम की एक टूल है जो गूगल के डीप माइंड ने बनाया था. इट गिव्स यू द स्ट्रक्चर विद इन अ डे. ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो तो वो आपको एक दिन में बड़ा अच्छा दे देता है. सो ऑल कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर बायोलॉजिस्ट वर आउट ऑफ जॉब after AlphaFold 2 was launched. AlphaFold 2 is an AI based protein structure folding tool. So my purpose here is to enable you guys कि आप लोग explore करें and you come up with ideas rather than us computer scientists. So I'm a trained computer scientist, computational scientist with very little biological knowledge. Okay, ठीक है, तो I want you guys to be coming up और ये silos में हो नहीं सकता. Unfortunately पाकिस्तान का dilemma ये हम आपको बहुत पहले कह देते हैं बायोलॉजी चूज करो या मैथ चूज करो, and that actually disrupts a lot of learning that can be done interdisciplinary और आजकल का तो सारा जमाना interdisciplinary. ठीक है, so with that I am currently at Soliton AI Labs. Soliton AI Labs is a health tech platform, a population health analytics company that serves Iowa, Massachusetts, तीसरी को एक थर्ड स्टेट है जिसकी पूरी पॉपुलेशन एनालिटिक्स हम लोग करते हैं. वी हैव बिग हॉस्पिटल ग्रुप्स लाइक McLaren Prime जो कि यूएस के हॉस्पिटल ग्रुप्स हैं. मोर देन 220 हॉस्पिटल्स यूज आवर सॉफ्टवेयर. इट इज EHR प्लस एनालिटिक्स टूल जिसमें आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, HCC कोडिंग वगैरह, केयर गैप्स, ट्रांजिशंस, वो सारे हमारी तरफ से AI बेस्ड, AI विद AI है नहीं बस AI बेस्ड चल रहे होते हैं. ठीक है, बिकता AI है लेकिन बैक एंड पे कुछ और है. So we've been doing that for 15 years. We have a whole team of clinicians that work with us very closely on the same group because, as I said, हमें biology नहीं आती है. So we need people who have the domain knowledge, who practice, who do this themselves, to come sit with us to identify these care gaps, make these hospital management, sort of care management programs कि आपने एक क्रॉनिक पेशेंट को, वेरी कॉम्प्लेक्स वेरी कॉस्टली पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, उसका रीएडमिशन रेट कैसे कम करना है, उसकी कैसे एनेबल करनी है उसकी एजुकेशन के, इट कॉस्ट लेस टू द पेशेंट एंड टू द गवर्नमेंट. सो आई थिंक आज आई एम स्पीकिंग टुमारो एज वेल, सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि आज का जो है इट वुड बी लेस साइंटिफिक एंड मोर के हाउ कैन वी गेट ऑन टू दिस पाथ थोड़ा सा, and we'll go to the details of the scientific part probably tomorrow more in more details. So just as briefly, computer scientist, undergraduate, PhD in bioinformatics from University of Illinois. It is a unique department that is situated in College of Medicine but run by College of Engineering. Nowadays it's run jointly, but उस जमाने में इस तरह चलता था. 2 postdocs हैं and I also taught at University of Chicago for 3 years. So just to give you a motivation कि actually you should be thinking a little bit more to how to solve our problems. सिर्फ patients देखना is not solving our problems. There are other things that we can do together that can solve a lot more problems. So हमारा जो hospital system या care management system in Pakistan is transactional nature. एक patient आपके पास आया, आपको एक fee pay की, आपने एक नुस्खा दिखा एंड दैट इज इट, दैट इज द एंड ऑफ दैट. नोबडी उसके बाद फॉलो अप्स कि वो नुस्खे से कोई चीज बेहतर भी हुई या नहीं, डिड वी अचीव द राइट पेशेंट आउटकम. द फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी लेस बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कहीं पे भी. जबकि वेस्टर्न हॉस्पिटल या मैनेजमेंट सिस्टम्स आर वैल्यू बेस्ड केयर. उनके एक सेट ऑफ मैट्रिक्स है, जिस तरह अभी जवाद साहब ने दिखाया था, द मोर्टेलिटी रेट और रीएडमिशन रेट. सो दीज आर द क्वालिटी मैट्रिक्स दैट दे मॉनिटर कि आपने कैसे रखते हैं. सो गिवन दोज क्वालिटी मैट्रिक्स यू वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट. सो दे हैव टू सी कि आपने जो प्रिस्क्राइब किया है उसके बाद पेशेंट दोबारा तो नहीं आया, पेशेंट की वो चीज ठीक भी होगी थी कि नहीं. सो वी वांट टू ऑप्टिमाइज दोज थिंग्स.
It looks in Pakistan that hospital business is quite lucrative, but data shows that on average 40% of hospitals in the West are in a loss. So they need to optimize their operations, they need to optimize their practices so that this is reduced. COVID के अंदर 53% of the hospitals were in a loss. The reason being कि वो insurance based है, आप कोई चार्ज करते हो, क्लेम भेजते हो, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, पूरा आता नहीं है, तो इवन दो एंड क्लेम लिखने में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, गलत कोडिंग डाल देते हैं, गलत डॉक्यूमेंटेशन चली जाती है, a lot of the things get rejected. 60% of the claims that are rejected can be reclaimed. ये भी स्टडी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होती है तो आपको पैसे नहीं मिलते. On top of that, पूरा आ नहीं रहा, but the blue line is the cost of living across goods and services that is increasing by about 80% since 2000 up till now. तो वहां पे भी महंगाई है ये, और बात है हमारे 2 साल में 80% इंक्रीज हो जाती है, वहां पे ओवर 24 इयर्स इंक्रीज हुई है, while the medical one is actually going much above that, 115% increase in cost आ रहा है उनकी मेडिकल. So it's not sustainable. They are looking for ways to optimize. तो हम क्या कर सकते हैं? There are a lot of domains, not just diagnostics. This is the healthcare landscape. इसके अंदर जिस तरह मैंने कहा था पेशेंट को एंगेज करना, क्या आपको फोन करना जरूरी है? क्या आप ऑटोमेटेड मैसेजेस नहीं कर सकते? Can't you give them a chatbot that they can do their appointments directly? They can pull up their lab results. They can pull up questions like, do I need to go and see a specialist? Do I need to go do this test? वो सारे ऑटोमेट हो रहे हैं. जो रेड लाइंस है, boxes, these are companies that are using generative AI. So there is nothing on the back eventually. It's a computer talking to patients and solving their problems to optimize these things. So it's a multi-billion-dollar industry. A lot of these people are doctors like you, doctorpreneurs, because they know the problems much more than somebody sitting outside the healthcare space. So do look these things up. इसमें video imaging is right down there. Radiology, pathology, इसको adoption में time लगेगा because diagnostics है, diagnostics से regulations है, आप proof of concept. बट ये चीज कि आपने क्लेम कैसे भेजना है, क्लेम कैसे वापस लेके आना है, सही कोड हुआ हुआ है कि नहीं, कुछ रह तो नहीं गया था. एक बंदा फ्लोरिडा से उठ के इलिनॉय आया है, तो लास्ट ईयर उसकी डायबिटीज मैनेज हो रही थी, तो अब हमने भी मैनेज करनी है, तो डायबिटीज का कोड अंदर डालना है जिससे पैसे आ सकते हैं, एंड थिंग्स ऑल दैट. सो क्लिनिकल ऑपरेशन मैनेज करना, ये दीज आर ऑल मच इजियर एरियाज वेयर यू कैन हेल्प डेवलप कंपनीज दैट कैन ऑप्टिमाइज दीज ऑपरेशंस. ठीक है. रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सुना है एकदम से डाटा साइंस, बिग डाटा, पता नहीं क्या क्या हो गया. एनीबडी, ताकि सब लोग जागते रहे, एनीबडी वुड वांट टू ऐड कि व्हाट इज डाटा साइंस और बिग डाटा? कैसे कैसे डिफाइन करोगे? आप लोगों के डाटा बढ़ गया, आपके हॉस्पिटल में बढ़ गया? So how would we define big data? Actually in terms of वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस और अमेज़न की आपकी पिक्चर्स वगैरह, वो तो बेतहाशा बढ़ गया है. इनफैक्ट 90% ऑफ द डेटा इन द वर्ल्ड वाज जस्ट जनरेटेड इन द लास्ट 2 years. सो दैट्स व्हाई द कांसेप्ट ऑफ बिग डेटा इज कमिंग. लेकिन हमारे से क्या रेलेवेंट है एज अ मेडिकल? इज द डेटा इंक्रीजिंग? हैव वी गॉन ऑन टू द डिजिटाइजेशन पाथ? अगर डिजिटल में नहीं जाएंगे तो डेटा तो कहीं नहीं होगा, वो तो फिर वही फाइलों में है जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते. लेबलिंग तो बाद में, अगर उसे ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना है, बट फर्स्ट थिंग इज डिजिटाइजेशन, कि आपकी क्या रिपोर्ट्स डिजिटल कहीं पे कंप्यूटर में जा रही हैं. आर वी स्टिल लुकिंग एट आवर पैथोलॉजी इमेजेस अंडर अ माइक्रोस्कोप? वी आर. इज द वेस्ट लुकिंग इट अंडर द माइक्रोस्कोप? दे नॉट. सो लेट मी शो यू जस्ट वन एग्जांपल ऑफ दैट. So this is a study, as Dr. Talat pointed out, we've been working with Shaukat Khanum for a while. So this is just one study where we scanned their pathology images and they could look at it on any screen that they want. Projector पे करना है, 4 बंदों ने इकट्ठे इस पे काम करना है, आपने second opinion लेना है किसी से बाहर. So you don't have to send your slides anywhere. You can do it from home. You can do diagnosis. हमारे pathology वालों का सबसे बड़ा they have to have the microscope जिस पे बैठ के करना है. No longer that's not the case. Okay, so this is a live microscope in your hand. The team one, this is a breast cancer slide, and one. So we had 2 teams working on it. आप देखेंगे top right corner पे team one is working. So पहली subjectivity when we have a lot of human involved is कि कहाँ पे देखना है. It's a huge slide. Where do we look
टू फाइंड माइटोटिक न्यूक्लियाई या व्हाटएवर। सो इस पे टॉप राइट के ऊपर, अगेन आई एम नॉट अ बायोलॉजिस्ट, प्लीज स्टॉप मी, जब मैं कुछ गलत बोलूं तो मुझे बता देना, ये जितना उन्होंने मुझे बताया वही मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, सो टॉप राइट के ऊपर दे स्टार्टेड फोकसिंग के वी विल लुक फॉर माइटोटिक न्यूक्लियाई ओवर हियर। सो दिस इज देयर मार्क्ड some of the mitotic nuclei जो वो काउंट कर रहे थे over here. It's much easier to share with others. So अगर कहीं पे उन्होंने look किया तो you can just go over there, microscope उठा के नहीं लेके जा रहे, कहीं पे इधर उधर नहीं हो रहा. So once you have this data, you can share it with anybody, you can share it with your supervisor, get it confirmed, all these things. So this is all digitized. This is a more than 1 GB का image जो आपके इंटरनेट पे और किसी मोबाइल डिवाइस पे भी आराम से चल रहा है. 1 GB is usually a whole movie जिसको इसने अभी आपके सामने लोड किया. सो दिस इज द लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन दैट इज रिक्वायर्ड वंस वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एआई. अगर किसी चीज को ऑटोमेट करना है तो पहले डिजिटाइज करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसको कहीं पे रखना पड़ेगा. अच्छा, सब्जेक्टिविटी की जो मैं बात कर रहा था, जस्ट टू पुट अ पॉइंट देयर कि आपको साथ असिस्टिव हेल्प चाहिए कि किस जगह पे करना है, बिकॉज सच अ बिग, और आप लोगों के पास बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, यू एकदम से बाहर से ही जूम आउट करके आप फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो दिस इज टीम 1. द सेकंड टीम वाज एक्चुअली लुकिंग एट समवेयर ओवर हियर, और ये हर केस में था. 2 teams rarely looked at the same place, so there is a probability कि उसकी वजह से diagnosis भी different आ रहे होंगे. ठीक है, so eventually without going into the details, we actually did an assistive one where we actually annotated the whole thing with an AI जो पूरे टिश्यू के ऊपर सारे माइटोटिक सेल्स निकाल लेता था, and you can, that helps you find the right प्लेस एज वेल, जहां पे ज्यादा माइटोटिक न्यूक्लियाई है वहां पे ज्यादा फोकस कर लें. एवरीबडी इज लुकिंग, सो सब्जेक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, एंड इट हेल्प्स कि आपको सारा कुछ खुद नहीं करना पड़ा. सो दिस इज द सेम टिश्यू, यू कैन सी आपको पूरे टिश्यू के ऊपर उन्होंने मार्क करके आपको दे दिया. यू कैन गो अहेड, वेरीफाई, कुछ गलत हुआ है उसको निकाल दें, कुछ एडिशन मिस हो गया वहां पे डाल दें, बट अ लॉट ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन. सो यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर. एंड ऑब्जेक्टिविटी, एज आई सेड, सब्जेक्टिविटी खत्म हो गया कि देखना कहां पे, जहां पे सबसे ज्यादा आपको क्लस्टर नजर आ रहा है, यू कैन गो ओवर देयर. सो जस्ट वन एग्जांपल ऑफ डिजिटाइजेशन फर्स्ट बिफोर टॉकिंग अबाउट एआई. तो पहले तो आप अपने हॉस्पिटल को जोर लगाएं कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को कंपलसरी करें, हर चीज उसके ऊपर लेके जाएं. एवरी पेशेंट शुड हैव अ ट्रैक्टेबल रिकॉर्ड जिसमें आप देखें कि डिड वी प्रिस्क्राइब द राइट थिंग, डिड ही कम बैक अगेन, व्हाट डिड वी डू ओवर देयर. And as it's 20 minutes, so we're running out of time. I think the major purpose was to show you this platform, as at least in pathology and radiology already digitized है, but उसमें आपको help चाहिए. How can AI help you? So AI will come in wherever you are doing a redundant task. एक चीज आप अगर दिन में several times कर रहे हैं, it can help you. So this is the most basic definition. Look out for places where you are just repeating the same thing, and save your brain for something where you need to put your brain there rather than एक चीज बार बार करी जा रहे हैं. So you need assistive technologies that's already available, locally भी develop हो रही है, बाहर से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है. Work with universities and you'll get localized technology. AI जो बाहर बनेगी, एक तो ये कि हमारा equipment भी थोड़ा पुराना होता है, हमारे processes भी थोड़े से same नहीं होते, it doesn't directly plug and play over here. So you need locally optimized things. So work with universities, work with local partners to come up with solutions that work for you, rather than बाहर से कुछ लिया और वो लगाया और वो चला भी नहीं. That the primary case is safe cities के कैमरास जो कि चाइनीज पॉपुलेशन पर ट्रेंड थे. हमारे सेफ सिटी के प्लान्स क्या सेफ है? 5,000 कैमरा लगे हुए हैं चाइनीज कंपनी के, कोई भी नहीं चल रहा. So that's the primary example. Make this technology yourself over here, and that's how it will work. Thank you.